बेनिफिशियल रहेंगे एनर्जी डिवीजन के लिए। टेलीकॉम की अगर हम बात करें तो टैरिफ हाइक, इंप्रूविंग सब्सक्राइबर मिक्स और जो ब्रॉडबैंड बिजनेस ग्रो कर रहा है वो की ट्रिगर्स रहेंगे। और रिटेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो स्टोर एक्सपेंशन, कंपनी का पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और जो ऑनलाइन बिजनेस है जियो मार्ट, उसको जो बढ़ता ट्रैक्शन मिल रहा है वो की ग्रोथ ट्रिगर्स रहेगा रिटेल डिवीजन का। अब अगर हम देखेंगे तो 2014 से रिलायंस इंडस्ट्रीज कंटिन्यूसली जो नेक्स्ट जनरेशन अंबानीज है उनको अपने कंपनीज में इंडक्ट किए जा रही है। आकाश को पहले रिलायंस जियो के बोर्ड में एक पोजीशन दिया गया था, फिर रिलायंस रिटेल वेंचर्स में और सावन में और जियो प्लेटफॉर्म्स में भी। और ईशा की अगर हम बात करें तो रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस फाउंडेशन के बोर्ड्स में भी हिस्सा ले चुकी है। और अनंत अंबानी की अगर हम बात करें तो वो रिलायंस रिटेल, जियो प्लेटफॉर्म में अब बोर्ड में हिस्सा है और जो नए 2 एनर्जी डिवीजन है रिलायंस के उसमें और O2C बिजनेस में भी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात जीएसटी काउंसिल की बैठक की। काउंसिल की बैठक के आखिरी दिन राज्यों में जीएसटी मुआवजे के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग रखी है और लेकिन इस पर फैसला फिलहाल नहीं हो सका है। अगली बैठक में इस पर चर्चा होगी। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके काउंसिल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। Inflation is not only your, mine, or any particular state's concern. All ministers who were there are aware of it. They're all looking at the system, keeping that in mind. So decisions taken by the council are not as though are being taken in isolation. So I want the friends in the media to please realize it's a good question to ask, but elected representatives who are part of the GST Council are fully conscious of it when they take their decision on it. AI study has been breached to the disadvantage of the system. Where it was 15.5, which was agreed to be the revenue neutral, it had already come down to 11.8 or 6 or something. That requires a correction, because if you're directly linking with buoyancy and then saying this doesn't have to be corrected, the kind of refunds which are going because of inversion, which is getting corrected now, there will be a similar concern about revenue neutrality, as a result of which, again, you're sitting over potential tax yielding points which have been left there. That's not efficiency of system. So rate rationalization, if it results in an increase, is also making up for, as in when it happens, not today, is also making up for the kind of inefficiencies which have appeared now, or the collateral of which is being borne by some other activities in that value chain. So those are sitting quiet waiting for us to do the correction, because the collateral of having come down from the neutral rate has hit some sectors. And at a time when we are looking at wanting people to come and invest in every element of the value chain, some are not drawing investments. The one thing which I want to highlight to you all first is whether it is horse racing or online gaming or casinos, the common thread which the committee highlighted was they're all part of betting and gaming. In other words, they are essentially gambling. All of this confirm and uphold the existing law which treats all these gaming, varieties of gaming similarly, and the incidence of tax where it is levied also is broadly accepted. Even as he presented the report, the Chief Minister of Meghalaya did say that Goa and its minister requested that he place his view even before the entire council, not just the GOM. So he was given an opportunity to speak in front of all the members of the GOM, wherein his request was that the treatment for casinos should be different. And therefore it was decided, he did give a complete presentation, therefore it was decided that Conrad Sangma
the chair of that GOM, will once more hear Goa. And even as this decision was taken, it was felt, some of the members of that GOM felt that if there is a window for casinos to be heard again, let horse riding also be heard again, let online games be also heard again. We've allowed that, but with a condition that by July 15th, the report should be back again with us. जीएसटी दरों में बदलाव का महंगाई पर ज्यादा असर नहीं होगा, ये मानना है सीबीआईसी के चेयरमैन विवेक जौहरी का। ET Now स्वदेश संवाददाता प्रियदर्शी से खास बातचीत में ये उम्मीद जताई कि खाने पीने की जिन सामानों पर जीएसटी छूट खत्म की गई है उनका थोड़ा ही असर होगा। हमारे साथ सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी हैं। सर, ET Now स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। काफ़ी अहम बैठक थी, कई बड़े बदलाव हम देख रहे हैं, खासकर जो GOM की जो रिपोर्ट थी रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर, जिसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और खासकर एग्जेम्पशन जो थे उसको हटाने का फैसला किया है। इससे कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ऐसे समय में ये फैसला लिया गया है जब महंगाई अपने चरम पे है और एग्जेम्पशन वाली जहाँ पर जो लिस्ट है उसमें कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको हटाने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल आइटम्स भी हैं जिसको हटाने से फ़र्क पड़ रहा है, जैसे लस्सी, जो पैकेज फूड है, अनब्रांडेड फूड है जिसमें लस्सी है, पनीर है, ये आइटम्स पे अगर आप एग्जेम्पशन हटाते हैं उसमें 5% GST लगता है, आम कंज्यूमर को तो दिक्कत होगी। देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे तो ऑलरेडी GST लग रहा था, लेकिन उसको लेकर दिक्कत ये थी कि हम इन्फोर्स कैसे करें, ब्रांडिंग का क्या मतलब है। कुछ हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आई थी कि उसमें अगर कोई डिस्क्लेमर डाल देता है तो उसकी वजह से उसको ब्रांडेड नहीं माना जाता। तो इस सब को देखते हुए इस पर फिटमेंट कमेटी में काफ़ी चर्चा हुई कि समस्या को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्योंकि ब्रांडिंग की परिभाषा कोई बहुत स्पष्ट है नहीं और किसको हम ब्रांड माने, कोई जो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं सिर्फ उनको ही ब्रांडेड माने, या जो इतने वेल नोन नहीं हैं लेकिन कोई नाम लिख देते हैं पैकेट पर उनको ब्रांडेड माने। तो ये सोचा फिटमेंट में ये विचार था कि यदि हम उसको सिर्फ लेबलिंग से जोड़ें, मतलब पैकेज तो हो और पैकेज के साथ साथ उस पर अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंतर्गत कुछ लेबलिंग भी हो तो टैक्स उस पर लागू करना और आसान होगा। तो इसको देखते हुए ये प्रस्ताव रखा गया जो कि काउंसिल ने मान लिया है, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा इसमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो ऑलरेडी टैक्स हो रहे हैं, जैसे पैकेज्ड दाल है या आटा है या पैकेज वीट है, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जो ऑलरेडी टैक्स हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट ही कहना कि एकदम से दाम बढ़ जाएंगे कहना मुश्किल है। ओके, बुमई कमेटी को जो 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला है, जो रिमेनिंग पार्ट है इस रिपोर्ट का, उसमें क्या क्या मेंशन होगा, क्या उसमें स्लैब मर्जन की भी सिफारिश होगी? जी, तो बुमई कमेटी को 3 विषयों पर को एग्जामिन करने का टास्क दिया गया था। उसमें से 2 विषयों पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें रिमूवल ऑफ एग्जेम्पशंस शामिल है और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का करेक्शन शामिल है। जो तीसरा इशू जिस पर उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है वो रेट रैशनलाइजेशन पर है, और रेट रैशनलाइजेशन का मतलब कि जो हमारा रेट स्ट्रक्चर है 5, 12, 18, 28 और कुछ स्पेशल रेट्स भी हैं, उनमें क्या बदलाव आना चाहिए ताकि हम जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट हमने निर्धारित किया था 15.5% उस तक पहुंच सकें। ये भी सोचा जाता है कि अगर बहुत सारे रेट्स होते हैं तो डिस्प्यूट्स भी बढ़ते हैं, तो रेट्स का नंबर कम होना चाहिए। और रेवेन्यू की तो चिंता है ही क्योंकि कॉम्पनसेशन अब ख़त्म हो रहा है। तो तीसरा जो मुद्दा है जो कि रेट रैशनलाइजेशन का है कि रेट स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होना चाहिए, उस पर बुमई कमेटी को 3 महीने और दिए गए हैं। वो उस पर विचार करके और काउंसिल में दोबारा आएंगे और तब उस पर निर्णय होगा। जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के फैसले से देश में महंगाई बढ़ सकती है। काउंसिल की बैठक में शामिल राजस्थान के शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल ने ये आशंका जताई है। धारीवाल राज्यों को जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने और केंद्र से कोई आश्वासन न मिलने पर नाराज दिखे। शांति धारीवाल से खास बातचीत ET Now स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने।
सर काफ़ी अहम बैठक थी। आज का जो एक अहम एजेंडा था, जो आप लोगों की मांग भी है जीएसटी कंपनसेशन पीरियड बढ़ाने की, उस पर कंपनसेशन अभी 30 जून को ख़त्म कर रहे हैं। हमारी शुरू से डिमांड रही है, हमारी क्या कई स्टेट्स की डिमांड रही है कि 5 साल और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 3 साल का जो पीरियड निकला है कोविड का, उसमें जो सोचा था पहले शुरू में जब ये जीएसटी लागू की गई थी, तब ये सोच था कि 5 साल में जो है इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई। हर जगह जो है वो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो अच्छी नहीं हैं, हर स्टेट की कंडीशंस अच्छी नहीं है। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि साहब जो है कंपनसेशन के लिए तो क्या आश्वासन मिला इस बैठक में? आश्वासन नहीं मिला, कोई तो फैसला क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे तो वो जाने, लेकिन डिमांड यही थी सबकी। इसके अलावा और कौन से ऐसे मसले थे जिस पर आज बैठक में फैसले हुए? मसला ये है कि बकाया जो हमारा पैसा है कंपनसेशन का वो चुकाइए। कितना बकाया है सर आपका? हमारा 4,800 समथिंग बकाया है, उसमें से करीब 1676 का तो जो है एजी की रिपोर्ट एजी की ऑडिट भी हो चुका है, वो वही पैसा नहीं दिया, तो वो पैसा तो उसके लिए का रिकंसाइल करेंगे हम इसको कैसे? कुछ ऐसे भी चर्चाएं चल रही थी कि दूसरे विकल्प भी आपको सरकार देगी आर्थिक सपोर्ट करने के लिए। सवाल ये नहीं है, जो कल फैसला कर लिया, कल फैसला करने के बाद में आज उसका वो बता दिया कि साहब 18 जुलाई से हम ये जो है लागू करेंगे नए जो एग्जेम्प्टेड गुड्स थे उन पे भी टैक्स लगाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जो ये आपके टैक्स रेट बढ़ाई जा रही है, और जिन पे जो ये सब बातें जो ऐसी हैं कि उनके बारे में ये नहीं बताया जा रहा कि नया टैक्स लगने के बाद में फिर आपका जो कंज्यूमर इंडेक्स है, कंज्यूमर वो कितना बढ़ेगा। तो ये एक आखिरी सवाल कि जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं अभी। सुनिए आप, सवाल ये है कि जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है तो ये बता दिया जाता है कि भाई इतना टैक्स है, ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी आपकी, और महंगाई पर इसका इतना असर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि 5% जो है आपने मान लीजिए किसी पे एग्जेम्प्टेड आइटम पर 5% का टैक्स लगा दिया, ठीक है, अब उससे महंगाई बढ़ गई 20%, तो फिर कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो कितना बढ़ गया, उस पर कितना असर पड़ेगा, तो वो नहीं बताया गया है। ओके, और नई दरें कब से लागू हो रही हैं? नई दरें बताते हैं कि साहब 18 जुलाई से लागू करेंगे ये लोग। चलिए, तो क्या कुछ निकल कर आया है जीएसटी काउंसिल की बैठक में से? आम आदमी पर किस तरह से महंगाई की वार पड़ेगी, बढ़ेगी या कम होगी? विस्तार से बात करते ही एनवाई के पार्टनर इंडायरेक्ट टैक्स उत्कर्ष सांघवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका स्वदेश आर में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सबसे पहले उत्कर्ष, तो शुरुआत हम करते हैं जिन चीज़ों के दाम बढ़े हैं उससे। क्या आपको लगता है कि महंगाई जैसी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बैठक के बाद बढ़ती हुई दिखाई देगी, जीएसटी के स्लैब्स बढ़ेंगे, ऐसा कुछ होगा? तो इसमें दो चीज बाहर आई है। एक तो जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जैसे आपके आउटपुट रेट ऑफ टैक्स कम होते हैं और आपके इनवर्ट के रेट ऑफ टैक्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको रिफंड क्लेम करना पड़ता है, उसमें उन्होंने जो आउटवर्ड टैक्स रेट्स है वो बढ़ा दिए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड ड्राइंग बुक्स है, नाइव्स है, मशीन्स हैं, वो सब पे उन्होंने एलईडी लैंप्स है, वो सब पे रेट्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उसके जो प्रोक्योरमेंट करते थे उसके रेट्स से 18% थे और जो वो चार्ज करते थे वो 5% थे। और दूसरा ये हुआ है कि उन्होंने ये जो पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड गुड्स के बारे में जो बात की है, उसमें मुझे लगता है कि जैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कवर्ड थे, लेकिन इसमें और काफी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल कंज्यूमर के लिए ये थोड़ा सा महंगाई थोड़ी सी तो बढ़ेगी फॉर श्योर। आपने प्री पैक्ड, प्री लेबल कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, ये सब चीज़ों पर दाम बढ़े हैं। एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, होटल रूम्स और हॉस्पिटल बेड्स को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश हैं? जी, उन्होंने क्या किया है कि अगर आपका जो होटल रूम है जो 1000 रुपीज से कम का था, तभी कुछ भी जीएसटी लग नहीं रहा था वो सब होटल रूम्स पे, अभी वो उन्होंने लगा दिया है, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। और दूसरा जो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था वो था हॉस्पिटल बेड्स। जो भी हॉस्पिटल अगर 5000 रुपीज पर डे पर पेशेंट के हिसाब से के ऊपर अगर रूम रेंट चार्ज कर रही है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी
बड़ी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उसमें अगर सिंगल बेड लेंगे तो 7,500 से 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से वो चार्ज करते हैं उनका रेट। उसमें जो भी डिफरेंस होगा 5,000 के ऊपर, उसके ऊपर वो लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। वो जो जीएसटी होगा वो सिर्फ 5% होगा, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल एंड मेडिकल सर्विसेज पे ये फर्स्ट टाइम है कि कोई जीएसटी लग रहा है। पंप्स एंड मशीन्स को लेकर भी मैं देख रही हूँ कि 18% यहाँ पर जो है वो जीएसटी स्लैब में इसको शामिल कर दिया गया है। तो मशीन्स जो कि क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, सीड, ग्रेन, पल्सेस, इन सब पर जो इस्तेमाल होती हैं, उन तमाम चीज़ों की कीमतें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। इसका असर तो हम एंड यूज़र पर पड़ता हुआ देखेंगे ही ना? नहीं, डेफिनेटली पड़ेंगे, इसका असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप घर पे कोई एक पवन चक्की ले रहे हैं या आप कुछ आटा चक्की ले रहे हैं, आप ग्राइंडर ले रहे हैं घर पे जो आप यूज करते हैं, उस पे रेट था 5% पहले, अभी वो बढ़कर 18% हो गया है। ये गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने करेक्शन किया है क्योंकि उसके जो इनपुट गुड्स और सर्विसेज ये कंपनीज लेती थी, तभी उसका जो रेट था वो से 12 से 18% था और उनका आउटपुट रेट से 5% था, तो वो करेक्ट करने के लिए लिया है। लेकिन फाइनली इसका जो एडिशनल टैक्स बर्डन है वो तो कंज्यूमर को ही पे करना पड़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जहां पर जीएसटी की दरें कम की गई हैं, उसमें राहत वाली कौन कौन सी चीजें होंगी उत्कर्ष? कुछ ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस हैं जिसमें वो 12% से उन्होंने 5% कर दिया है। कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड है, रेंटिंग ऑफ ट्रक्स रिलेटेड है जिसमें उन्होंने रेट कम कर दिया है। देयर आर और भी छोटी मोटी और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उन्होंने कम किया है। लेकिन जो लिस्ट है जो एग्जेम्पशन में शामिल की है वो लिस्ट इतना बड़ा नहीं है। वो हम देख सकते हैं कि वो लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन एक चीज जो डिसअपॉइंटिंग रही है और जिसकी सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, कॉम्पेंसेशन, राज्यों को मुआवजे पर क्लैरिटी को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ये किस ओर अब रुख कर चुका है? स्टेट्स लास्ट 5 years ऑफ जीएसटी में स्टेट्स को 14% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से उनको कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पे कर रही थी। अगर कोई स्टेट का रेवेन्यू फॉर अ फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर के हिसाब से 14% से अगर कम होता था तो वो कैलकुलेशन करके उतना एडिशनल कॉम्पेंसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पेंसेशन सेस से पे कर रही थी। अभी इसमें क्या हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारी लोन ली है 2020-2021 में, जब भी हमें कोविड हिट हुआ था और जब भी स्टेट रेवेन्यूज काफी कम हो गए थे, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लोन लिया था और वो लोन के ऊपर काफी सारा इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं और वो फंड से उन्होंने कॉम्पनसेट किया था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पोजीशन है कि हम इसको 5 years से ज्यादा अभी एक्सटेंड नहीं करेंगे। अभी फिर भी कॉम्पनसेशन सेस जो है जो कलेक्ट करे थे वो चलेगा, वो 2026 तक कंज्यूमर्स को पे करना पड़ेगा। बट वो जो फंड कलेक्ट होगा वो सारा का सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा और वो फंड जो लोन ली थी उसकी भरपाई में काम लगेगा। सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यूज इतने बढ़ नहीं रहे हैं, उनकी मांग ये है कि हमें जैसे आपने लास्ट 5 years में कॉम्पनसेट किया था, हमारे रेवेन्यूज वो हिसाब से सिक्योर्ड थे, अभी वो रेवेन्यू सिक्योर्ड नहीं रहने वाले हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स की मांग है। उत्कर्ष, समय लगभग मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन आप हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूं कि इसके अलावा और कौन कौन सी हाईलाइटेड चीजें हैं जो जाननी जरूरी है इस बैठक में से, जो निकल कर आई है और जो आम आदमी के खास इस्तेमाल की हो। जी, एक तो एक गवर्नमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किए गए थे कुछ आईटी रिफॉर्म्स लाने के लिए कि अगर हमें कोई व्यक्ति आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो फेक है या वो उसने काफी सारे डिफॉल्ट्स किए हैं पास्ट में। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेसिस टेक्नोलॉजी वो इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि वो पर्सन पहले पास डिफॉल्टर्स थे कि नहीं और उनको शायद रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। और दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट जो मैं बोल सकता हूँ गवर्नमेंट ने सहूलियत दी है, वो है
ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू अगर सप्लाई कर रहे हैं। आज ये है कि अगर आपको कुछ भी कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करना आपको करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दो आपका टर्नओवर लिमिट से कम हो। तो अगर आप 10 रुपए की भी चीज बेच रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो आपको वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वो उन्होंने वेव कर दिया है। तो अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है, फिर भी आप सप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं, आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तभी भी आप ई कॉमर्स ऑपरेटर से सप्लाई कर पाएंगे। ये जो है मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी सहूलियत है। बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम अहम बातें जो इस बैठक में से निकल कर आई है समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की ओर। कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई जारी है। एमवीए ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उद्धव सरकार को कल फ्लोर के लिए कहा गया है। यानी अपनी याचिका में महाविकास आघाड़ी ने कहा है कि राज्यपाल का ये आदेश कानून के मुताबिक नहीं है। लेटेस्ट अपडेट क्या है फिलहाल इस पूरे मुद्दे में, दानिश आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश बताएं, फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे फुल ऑन एक्शन में है, कैबिनेट की बैठक ली, तमाम तरह के अहम बदलाव किए उन्होंने। लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मसले में क्या है, बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 5:15 बजे से महाराष्ट्र के मामले पर एक अहम सुनवाई चल रही है। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी जो शिवसेना के जो चीफ विप ने जो प्ली फाइल करी थी उनकी तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे। ओवरऑल उन्होंने आर्ग्यूमेंट में काफ़ी पुराने जजमेंट को रेफर करते हुए काफ़ी बातें बोली और उन्होंने ये चीज़ को भी हाईलाइट करा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के गवर्नर ने डिसीजन लिया है वो एक बहुत जल्दी उन्होंने डिसीजन ले लिया है, एज पर लॉ उनको चलना चाहिए। और जो महाराष्ट्र असेंबली के जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उनके थ्रू ही इस मामले को आगे लेके जाना चाहिए। तो ये सब आर्ग्यू किया गया था उनकी तरफ से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए कहा कि जो मुद्दा फ्लोर ऑफ द हाउस का है वो वही चाहेंगे कि फ्लोर ऑफ द हाउस में ही ये मामला सेटल हो जाए। इसके बाद जो लॉयर थे शिंदे फैक्शन की तरफ से, एनके कॉल जो भी समय भी आर्ग्यू कर रहे हैं, उन्होंने यही बोला कि जो भी मामला चल रहा है इन्होंने पूरा रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो हुए हैं। और सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे देता है कि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो वो डेमोक्रेसी के वाइज वो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा। तो शिंदे का फैक्शन यही पुश कर रहा है कि कल जिस तरह से गवर्नर ने बोला है कि 30 जून को महाराष्ट्र में एक फ्लोर टेस्ट होगा, वो चाहते हैं कि वो फ्लोर टेस्ट हो। लेकिन जो अभिषेक मनु सिंघवी जो शिवसेना के चीफ विप की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे ये जो फ्लोर टेस्ट है उस पर एक ऐसे आदेश निकालना चाहिए कि इसको फ्लोर टेस्ट को थोड़ा डिले कर देना चाहिए। और उन्होंने एक कोट बोला कि हेवंस विल नॉट फॉल अगर कल फ्लोर टेस्ट को अगर पोस्टपोन कर देते ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होगा। तो अभी भी आर्ग्यूमेंट दोनों ही पक्षों से इस समय चल रही हैं और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एक और आर्ग्यूमेंट स्ट्रेच होगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई फैसला जल्द ले सकता है। चलिए दानिश, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच राज्यपाल ने उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है और कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही निकलेगा। और वैसे खबर ये आ रही है कि अगर कल फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो उससे पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल ये बात महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक से निकल कर आई है और खबरों के मुताबिक सीएम उद्धव ठाकरे ने सबको धन्यवाद कहा। ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल सहयोग के लिए धन्यवाद, मुझसे कोई भूल हो तो क्षमा करें। कैबिनेट बैठक में उद्धव सरकार ने हिंदुत्व कार्ड भी खेला। औरंगाबाद शहर का नाम सामाजिनगर रखने को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया है। पल पल महाराष्ट्र की राजनीति की लेटेस्ट जानकारी यहां पर हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव दे रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई हो रही है क्या कि महाराष्ट्र विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट होना चाहिए या ना चाहिए। और आज अर्जेंट मेंशनिंग की
बात जो है वो की गई थी और उसके बाद आज 5 बजे का वक्त तय किया गया था और उसके बाद से लगातार उद्धव ठाकरे कैंप यानी कि सरकार की तरफ से और शिंदे कैंप की तरफ से लगातार जो है दलीलें दी जा रही हैं कि क्या कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर ये रही कि उद्धव ठाकरे ने शाम 5 बजे एक कैबिनेट बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने कुछ बड़े फैसले लिए, वो फैसले जो पिछले काफ़ी समय से लंबित थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो बताया जा रहा है जो कि एक सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है, साथ ही साथ उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव किया गया और साथ ही साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल एयरपोर्ट किया गया है। और इस दौरान जब ये चल रही थी तो उद्धव ठाकरे ने सभी मंत्रियों और साथियों को जो है वो धन्यवाद दिया कि उन्होंने अभी तक उनका साथ दिया। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि उनके साथ के लोगों ने उनके साथ धोखा किया और ये वजह है कि आगे तक वो इस लड़ाई को जरूर लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं दी कि क्या फ्लोर टेस्ट होने की स्थिति के पहले ही वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक घमासान लगातार जारी है, उन सब के बीच में गुवाहाटी में बैठे शिंदे गुट के विधायक जो हैं वो किसी वक्त जो हैं वो गोवा पहुंच सकते हैं और अगर कल फ्लोर टेस्ट की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट दे देता है, उस स्थिति में ये शिंदे गुट के सभी जो नेता हैं वो मुंबई पहुंचेंगे और उसके बाद फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। लेकिन सवाल यही बना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाएगा, क्योंकि राज्यपाल ने कल देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद 30 तारीख को 11 बजे फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। लेकिन क्या डिप्टी स्पीकर राज्यपाल के फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है, को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, 18 नाउ स्वदेश, मुंबई। एक तरफ मुंबई में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। उद्धव सरकार की सबसे बड़ी मुश्किल है एकनाथ शिंदे गुट की बढ़ती ताकत। गुवाहाटी से एकनाथ शिंदे का गुट गोवा पहुंच चुका है और शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा यहां पर की जा रही है। एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की बात कही है और शिंदे गुट के विधायकों की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के 2000 से ज्यादा जवान विमान से मुंबई पहुंच चुके हैं। वहीं गोवा आने से पहले एकनाथ शिंदे कॉन्फिडेंट नजर आए। फ्लोर टेस्ट में शक्ति प्रदर्शन से पहले शिंदे गुट के विधायकों ने कामाख्या के शक्तिपीठ में पूजा अर्चना भी की है। मीडिया से बात करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि देश कानून और संविधान से चलता है और उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। हमारे पास 50 विधायक हैं और हमें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है। आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद की ओर। तो दानिश, यहाँ पर बताएं कि फैसला कब तक आ सकता है और दूसरा क्या लगता है फैसला किस तरह से आ सकता है, किस लाइन पर आ सकता है? शिंदे गुट तो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि ये जो अर्जी की है उद्धव सरकार ने, ये अर्जी ही गलत है। देखिए, इस समय भी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस समय चल रही हैं और शिंदे गुट के दूसरे वकील मनिंदर सिंह अभी वापस आर्ग्यू कर रहे हैं और वो पहले जो आर्गूमेंट हुई है इनके कॉल की, उसी को वो सप्लीमेंट करते हुए उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि इसके पहले जितनी बारी भी फ्लोर टेस्ट का मुद्दा जब भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तब वो फ्लोर टेस्ट कराने को पहुंचा है और ये पहली बारी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मुद्दा आया है जब फ्लोर टेस्ट को रोकने के लिए कि किसी तरह की याचिका दी गई है। तो एक बारी फिर से शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट को यही बोल रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस फ्लोर टेस्ट को रोक देता है तो ये नेचुरल जस्टिस के बिल्कुल अगेंस्ट होगा। और जहां तक बात आती है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला सुनाएगा, तो उम्मीद अभी यही लगाई जा रही है कि मनिंदर सिंह भी अभी थोड़ा और आर्ग्यू करेंगे और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी महाराष्ट्र के गवर्नर की तरफ से आर्ग्यू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट काफ़ी लंबी अभी चलेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब जिस तरह से वो ऑर्डर रिजर्व करता है उसके बाद ही वो या तो एक ऑर्डर पास करेगा या वो जजमेंट को रिजर्व कर लेगा। और किस तरह का ये जजमेंट हो सकता है वो कहना थोड़ा प्रीएम्प्टिव होगा, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट सारे ही पक्षों को सुन रहा है। तो जहां तक अनुमान हम लगा सकते हैं कि एक बैलेंस्ड वर्डिक्ट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से।
आप नजर बनाए रखें, पल पल यहाँ पर घटनाक्रम बदल रहे हैं। आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। रुक करेंगे दूसरी अहम खबरों की ओर। डॉलर के मुकाबले रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी आज भी जारी रही है। $1 का भाव 79 रुपए के करीब पहुंच चुका है। और रुपए में इतनी गिरावट की आखिर क्या वजह है, पूरा मामला हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार समझा रहे हैं। फेड का रुख काफ़ी सख्त है और महंगाई उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और महंगाई कम करने के लिए वो जून के बाद अब जुलाई में भी करीब 0.75% ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे। और इंडिया के पास वो रूम नहीं है क्योंकि अब आरबीआई की जो अगली पॉलिसी है वो अगस्त के महीने में है। तो जो बॉन्ड यील्ड का जो गैप है यूएस बॉन्ड यील्ड का और इंडिया के बॉन्ड यील्ड का, वो काफ़ी नैरो हो जाएगा। तो इस वजह से भी यहाँ पर डॉलर को सपोर्ट मिल रहा है और इंडियन रुपीज़ में लगातार बिकवाली देखने को है। और पिछले कुछ समय के अगर रिटर्न की अगर बात करें तो रुपए में उस तरह की गिरावट नहीं आई थी जितना बाकी इमर्जिंग कंट्रीज के जो करेंसी है उनमें कमजोरी देखने को मिली। तो रुपया हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट अब तक नहीं दिखा पाया है। 7-8% की पिछले कुछ महीने में गिरावट आई है, जबकि कई सारे ऐसी करेंसी हैं जो डॉलर के मुकाबले 15 से 20% तक टूट चुके हैं। तो धीरे धीरे रुपए में भी वो गिरावट दिख रही है। और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अगर रुपए की आप प्राइस देखें तो वो 80 के ऊपर भी जा चुके हैं। तो आने वाले समय में एक्सपर्ट्स से कई सारे एक्सपर्ट से बात हुई तो उनका मानना है कि अगले कुछ महीने में 80 के ऊपर भी डॉलर के मुकाबले रुपया जा सकता है। हालांकि ये रैली वन वे नहीं होगी, ये कमजोरी वन वे नहीं होगी, बीच में थोड़ी मजबूती भी दिखाएगा, लेकिन वापस से जो ट्रेंड है वो रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोरी का ही है। जी, केंद्र सरकार ने क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन को मंजूरी दे दी है, यानी अब ऑयल कंपनियां देश में उत्पादित क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने स्वतंत्र होंगी। और कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि ये फैसला इस साल 1 अक्टूबर से लागू होगा। वर्तमान में देश में उत्पादित 99% यानी कि 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट किया जाता है। ये व्यवस्था तब से चली आ रही है जब से क्रूड ऑयल का उत्पादन पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी और रिफाइनरी की भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही करती थी। आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। अब क्रूड ऑयल और कंडेंसेट का एलोकेशन बंद हो जाएगा। ये निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। निर्णय के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स कंपनीज हैं। निर्णय के अंतर्गत जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के वो प्रावधान जिसके तहत सरकार या सरकार द्वारा नामित संस्था और सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की बाध्यता थी, वो समाप्त कर दी जाएगी। अब सब ईएनपी कंपनीज अपनी फील्ड के क्रूड ऑयल को घरेलू बाजार में बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। सेबी बोर्ड की ओर से एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में एफपीआई की भागीदारी को मंजूरी दे दी गई है। और कैसे समझे इस खबर को, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी दे रहे हैं। देखिए क्या बड़ी चीज़ें आई हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही आई है कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसमें अलाउ करा जाएगा एफपीआईज को पार्टिसिपेट करने के लिए। इनिशियली अगर हम बात करें केवल कैश सेटलमेंट्स में और कहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में और सिलेक्ट नॉन एग्रीकल्चरल बेंचमार्क इंडिसेस में। शुरुआत में केवल कैश, आगे जाके शायद इसमें बदलाव होंगे। उसके बाद जो बदलाव हुए म्यूचुअल फंड रेगुलेशन पे थोड़े बदलाव हुए, थोड़े बहुत पोर्टफोलियो मैनेजर्स के रेगुलेशन में बदलाव हुए। और एक और जो बड़ी चीज़ हुई है वो कि सेबी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो अप्रूव हुई है। लेकिन जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें निकल के आई है वो यही है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अब एफपीआईज भी हिस्सा ले सकेंगे। आईडीबीआई बैंक में मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने पर डीबीएस बैंक भी विचार कर रहा है और इसको लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ डीबीएस बैंक की चर्चा भी शुरू हो गई है। एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा आपको बारीकियां दे रहे हैं। डीबीएस बैंक आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल में इंटरेस्ट थ्रो कर सकता है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो ऑफिशियल्स हैं फिनमिन के, उनके साथ मुलाकात हुई है डीबीएस बैंक की। और हालांकि अभी फाइनल जो डिसीजन होगा वो जब एक्सप्रेशन
इंटरेस्ट के डिटेल्स आ जाएंगे उसके बाद ही लिया जाएगा। लेकिन एक अनौपचारिक बातचीत जरूर हुई है सूत्रों के मुताबिक। साथ ही साथ अगर डिटेल्स की बात करें तो EOI में मर्जर एक ऑप्शन हो सकता है। ये डिटेल्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब फ्लोट होगा तो उसमें हो सकते हैं और ये रास्ता चुना जा सकता है उन सारे बैंक्स के लिए जिनको मर्जर के थ्रू ये एक्विजिशन करना है। साथ ही साथ अगर टाइमलाइन की बात करें तो हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि EOI अगले महीने यानी कि जुलाई तक आ सकता है, क्योंकि जो दीपम है उसने काफ़ी सारे रोड शोज कंडक्ट किए थे जो IDBI बैंक है उसमें इंटरेस्ट को गैदर करने के लिए। तो सूत्र यही बता रहे हैं कि एक बार EOI की डिटेल्स आ जाती हैं तो ये प्लेयर्स न सिर्फ DBS बैंक जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं IDBI बैंक स्टेक सेल में इंटरेस्ट दिखाने के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से छोटी और मझोली कंपनियां मुश्किल में आ गई हैं और ऐसी कंपनियों के संगठन सरकार से वित्तीय सहायता की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए नई मशीन और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जिस SMA यूनिट में मैं खड़ी हूँ उनमें 4 मोल्डिंग मशीनें और ये चारों मशीनों को दोबारा फंक्शन में लाने के लिए 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ये कंपनी पहले कटलरी का सामान बनाती थी, चम्मच, फोक जैसे, और एयरपोर्ट और एविएशन इंडस्ट्री को सप्लाई करती थी, लेकिन अब इसे शिफ्ट करना पड़ेगा अपने बाकी आइटम्स में, स्टेशनरी आइटम हो गए या फिर फार्मा पैकेजिंग की तरफ, क्योंकि नए मोल्ड्स के लिए इनके पास अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है। 35 लोगों को रोजगार देने वाली इस कंपनी को अपने हाल के किए उत्पादन को 250 रुपए प्रति किलो के बाजार भाव के मुकाबले स्क्रैप में 35 रुपए किलो पर बेचना होगा। ऐसी कई छोटी और मझौली कंपनियां हैं जिन्होंने सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के ऐलान के बाद से उत्पादन बंद कर दिया है, लेकिन अब वे सरकार से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक या पेपर पर शिफ्ट करने के लिए नई मशीनों के लिए वित्तीय सहायता की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक इन कंपनियों का कुल 39,000 करोड़ रुपए तक का निवेश फिलहाल इस सेक्टर में लगा हुआ है। हमारी मशीनरी में इतना पैसा लगा हुआ है फॉर चेंजिंग द प्रोडक्ट, फॉर चेंजिंग द मेथड, प्लस हमारे जो 10 लाख लोग लगे हुए हैं तो उनकी ट्रेनिंग करना, नए प्रोडक्ट वगैरह के लिए एक अवेयरनेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, तो हम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं और गवर्नमेंट का सहयोग इन चीजों के लिए हमें चाहिए। 800 से ज्यादा उत्पादकों के संगठन थर्मोफॉर्मर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मुताबिक उनके साथ 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और इंडस्ट्री में सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक आदि के जरिए कुल 4.5 लाख लोग रोजगार पाते हैं। प्लास्टिक फूड पैकेजिंग बनाने वाली कंपनियों का कुल सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए के करीब है। वहीं अब ऐसी कई कंपनियां हैं जो क्रेडिट पर चल रही थी और अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर सकती हैं। जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, जो लोन्स हैं, जो उनके रॉ मटेरियल और जो क्रेडिट्स बाजार में अवेलेबल है, वो लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा NPA होने की संभावना है। सरकार कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सहायता देने के लिए MSME यूनिट्स के साथ वर्कशॉप कर रही है और इसके साथ साथ इस ट्रांजिशन के लिए कंपनियों को मदद देने के लिए कई अन्य कदम भी उठाए जा रहे हैं। पर बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 1 जुलाई से प्लास्टिक के बने कप, प्लेट, चम्मच, फोक जैसे कई आइटम का उत्पादन, सप्लाई, इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बैन हो गया है और अब टाला नहीं जा सकता। खुशबू तिवारी, ET Now स्वदेश। आपके शेयर, आपके ट्रेड, इंडस्ट्री से जुड़े सभी अपडेट, म्यूचुअल फंड या कमोडिटी, जहां भी हो आपका निवेश,